So good morning, students. Betty, yesterday we knew about the meaning of cooperative society, which is another form of business organization. As I told you, cooperative society is the one which is the voluntary association of the people who join hands together for the common motive. And generally, that motive is not earning profit, that motive is service motive. Those people who want to save their exploitation from the hands of the middlemen, they generally form cooperative societies. So cooperative society needs to be registered under Cooperative Societies Act 1912. So let's discuss what are the features of the cooperative society. First feature is voluntary membership. Minimum 10 members, 10 adult members are required to form a cooperative society. Okay? So any person, be he of any religion, any state, any person above 18 years of age can become member of the cooperative society. ठीक है, सो वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है. अपनी जितनी भी वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करके इसका मेंबर बन सकता है. ठीक है, एनी टाइम ही कैन इवन लीव द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ही जस्ट हैज टू गिव द नोटिस. वॉलेंट्री मेंबरशिप का यही मतलब है बेटे कि अगर वंस यू हैव बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी and after a few days or few months you want to leave the cooperative society, you no longer want to become a member, so you can leave the cooperative society. There is no compulsion to remain the member of cooperative society once you have joined it. तभी वर्ड वॉलेंट्री लगाया है बेटे. कल को अगर आपका मन नहीं मानता है, आप एक नोटिस दे दीजिए, यू कैन लीव द कोऑपरेटिव सोसाइटी. आपने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है वो आपका जो है कैपिटल आपको अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी वापस मिल जाएगी. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली हमें लगता है फार्मर्स मिलके बनाते हैं. नो बेटे, एनी पर्सन ऑफ एनी रिलीजन, ऑफ एनी रीजन, कैन ऑफ एनी ऑक्यूपेशन कैन बिकम मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. राइट. सेकंड बेटे, लीगल स्टेटस. तो इसका लीगल स्टेटस क्या है? बिकॉज इट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, so it acquires a legal separate legal entity apart from its member. बेटे, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है वो एक उसकी एक स्पेशल आइडेंटिटी हो जाती है, वो एक स्पेशल स्टेटस एक्वायर कर लेती है इन द आईज ऑफ लॉ. ठीक है, सो वंस अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड, one thing it has to use the word cooperative with its name. जो भी इसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इसको अपने नाम के साथ कोऑपरेटिव वर्ड जरूर लगाना पड़ेगा. ठीक है, और जब इसने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, इट बिकम्स अ सेपरेट एंटिटी. ठीक है, जिसकी एग्जिस्टेंस उसके मेंबर से अलग है. नाउ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिकॉज इट हैज एक्वायर्ड अ सेपरेट entity, separate identity, it can acquire property in its name. ठीक है, ये अपने नाम की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है. It can sign contract in its own name, it can sue others and it can be sued by others. ठीक है, इसको हम sue कर सकते हैं और दूसरे भी हमें इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को sue कर सकते हैं. नेक्स्ट बेटे, लिमिटेड लायबिलिटी. तो लायबिलिटी का फीचर हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनर की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. हाँ, अगर एलएलपी है तो उसमें अलग केस होता है, और अगर एचयूएफ फैमिली बिजनेस की बात करें उसमें कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. Now talking about the liability of members of cooperative society. But all the members of cooperative society have limited liability.
That is, their liability is limited to the capital contributed by them. So say I am the member of cooperative society and I have contributed 1 lakh rupees. Okay? And if cooperative society goes into losses, I will suffer the maximum loss of 1 lakh rupees. My personal assets will not be used to pay off cooperative society's debts. Is it clear, bete? Okay. Next, bete, feature जो है that is control. Now, who controls the cooperative society? A cooperative society may have hundreds of members. Okay? So, in order to take decisions, the cooperative society, it elects its representatives. एक इलेक्टेड कमिटी होती है, ठीक है? ये इलेक्टेड कमिटी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे मेंबर्स के बिहाफ पर डिसीजंस लेती है, ठीक है? और मोरओवर जितने भी मेंबर्स हैं, लेट अस से ये 10 मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, all of them have contributed capital according to their own wish. A has contributed 1 lakh, तो इसको shares worth 1 lakh मिले होंगे. B has second person has contributed capital worth 1.5 lakh. Third person has contributed capital worth 50,000. Fourth has contributed 2 lakh. Fifth person has contributed 1 lakh and so on. ठीक है? लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी तो 1 person 1 vote criteria is there. 1 person 1 vote criteria. ऐसा नहीं है कि ये 4th पर्सन बोले कि भी मैंने तो 2 लाख कंट्रीब्यूट किए, इसने 50,000, तो मेरी 4 वोट्स होनी चाहिए. नहीं, irrespective of the capital contributed by the different members, each person will be entitled to give 1 vote. वोट उसको किस लिए चाहिए? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के लिए. वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो इन लोगों की वोट से इलेक्ट होंगे और इन सब लोगों के बिहाफ पर सारे डिसीजंस लेंगे. ठीक है? ऐसे ही होता है बेटे, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो जाता है, यानी कि उसके मेंबर ज्यादा हो जाते हैं, तो सारे मेंबर्स मिलकर डिसीजन नहीं ले सकते. उस केस में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स आ जाते हैं. सो हम एक बॉडी, एक कमिटी इलेक्ट करते हैं जो कि सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट करती है. और क्योंकि इन लोगों ने ही उसको मिलके वोट देके चूज किया है, सो ये इन्हीं के बिहाफ पे काम कर रही है, तो इनकी डिसीजन सारे मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग रहेंगी. क्लियर? नेक्स्ट फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटे, सर्विस मोटिव. बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं सेटअप किया जाता. इसका मोटिव होता है अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, मैक्सिमम हेल्प प्रोवाइड करना. टू प्रोवाइड, अगर कंज्यूमर्स have formed this cooperative society, then the purpose of forming a consumer cooperative society is to provide good quality goods and services to its member at low prices. ठीक है? सो यही मोटिव होता है हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, चाहे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चाहे वो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चाहे वो फार्मर्स ने बनाई है, चाहे वो मार्केटिंग सोसाइटी है. हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव होता है टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स. So these are the features of the cooperative society. Now we have to analyze its various merits and demerits as well, because if we want to set up any business, we have to make a choice amongst sole proprietorship, partnership, or HUF, cooperative society, or corporate form of organization. So we can make right decision only when we are aware about the merits as well as demerits of various types of organization. So let's discuss the merits of the cooperative society. First merit is equality in voting status. Just now I told you that a cooperative society takes its decisions
ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किसने इलेक्ट किए हैं? मेंबर्स ने इलेक्ट किए हैं। कैसे? वोटिंग से। नाउ एवरी पर्सन हैज वन वोट, one man one vote criteria is followed. So irrespective of the fact that this person has contributed 10 lakh rupees, this person has contributed 1 crore rupees, ठीक है, उनका शेयर उस हिसाब से उनको मिल जाएगा, डिविडेंड उस हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन वोट हर पर्सन को एक ही मिलेगी। ठीक है, तो ये जो मेरिट है इसको हम कहते हैं कि इसके कारण जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो डेमोक्रेटिक इन नेचर है। ठीक है, इट्स डेमोक्रेटिक इन नेचर, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज you know, when you elect your own representatives by giving your own vote, in that case also irrespective of your caste, religion, age, you know, or anything else, or your salary or your income or your background, you get only one vote. So this equality in voting status accord uh, democratic character to the cooperative society. Then better limited liability is another important merit. All the members of cooperative society, their liability is defined, their risk is defined, their liability is limited to the capital contributed by the members. So which means their personal assets are safe. So yes, if you have surplus of capital lying with you, and if you want to, you know, serve the members of the society, and you want to keep your personal assets safe also, you can become member of cooperative society because your liability is limited. Then bete stable existence, members may come, members may go, cooperative society once registered it will continue to do so. ठीक है, it is not affected by the death of the members, lunacy of the members, or imprisonment of the members, or if members retire. ठीक है, कोई मेंबर की डेथ हो जाती है, कोई मेंबर रिटायर हो जाता है, या कोई मेंबर नोटिस दे देता है कि मेरे को कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ना है, इन दैट केस कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता बेटे? क्योंकि इसको हमने रजिस्टर करवाया हुआ है। वंस द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड इट एक्वायर्स सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, दैट इज इट बिकम्स अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉज। कानून की नजरों में ये इसकी आइडेंटिटी पैदा हो गई है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नोन बाय इट्स ओन नेम. It is not affected by the coming or going of its members. Got it? Okay. So next merit bete economy in operations. See, cooperative society का purpose ही service motive है. cooperative society का purpose ये है कि हमने अच्छी क्वालिटी गुड्स लो प्राइसेस पे अपने मेंबर्स को अवेलेबल कराने हैं। ठीक है, तो बेटे मार्जिन क्यों ऐड होता है? मिडिल मैन के जो है खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन खर्चों को निकालने के लिए वो हर लेवल पे मार्जिन ऐड करता जाता है। ठीक है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जो मेंबर्स हैं दे परफॉर्म ऑल दी ऑपरेशंस। ठीक है, अगर लेट्स से कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने बनाई, हमने एक स्टोर खोल दिया जहां से हम गुड्स लेके आ रहे हैं अलग अलग प्रोड्यूसर से और अपने मेंबर्स को बेच रहे हैं। अब इस स्टोर को रन करने के लिए हमें मैनेजर की जरूरत है, हमें सेल्समैन की जरूरत है, हमें गार्ड की जरूरत है, हमें ट्रांसपोर्टर की जरूरत है। तो बेटे अगर हम ये सर्विसेज हायर करते हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ जाती है। फिर वही बात आ जाती है, लो प्राइसेस पे हम अपने कंज्यूमर्स को गुड्स नहीं बेच पाते, क्योंकि इनका खर्चा कहाँ से निकालेंगे? ठीक है, कंज्यूमर को गुड्स बेच के हाई प्राइसेस पे वहीं से निकलेगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी लोग जो इसके मेंबर्स हैं बेटे वो सब मिलके काम करते हैं।
they provide honorary services to their institution. Anyone who is aware of honorary services? Raise your hand if you know what is the meaning of honorary services. If I tell you I am serving my institution on honorary basis, what would it mean? Anyone? Raise your hand if you know. Okay, so no one knows. बेटे honorary का मतलब होता है without payment. वो कुछ उसके बदले सैलरी नहीं लेते हैं, बिना सैलरी के वो अपनी सर्विसेज अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. सो लेट्स से 10 मेंबर है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के. ये वाला मेंबर कहता है कि मैं सुबह 8 से 10 फ्री होता हूँ, उसके बाद तो मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है. ठीक है. तो 8 से 10 मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर दूंगा. तो he may act as a manager, he may act as a salesman and so on. ठीक है. तो इस पर ये पर्सन कहता है कि ठीक है मैं शाम के 8 बजे के बाद फ्री होता हूँ, I will come after 8. So in this way, generally the members themselves, they provide honorary services to the members. So there are, economy in operations. Economy means cost save हो जाती है उनकी, कम कॉस्ट में उनके सारे ऑपरेशंस हो जाते हैं. ओके. नेक्स्ट मेरिट बेटे गवर्नमेंट सपोर्ट. कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत मिलता है. सबसे पहली बात, सपोर्ट किस तरह का सपोर्ट? दे मे गेट सब्सिडाइज्ड गुड्स. कुछ भी गुड्स वगैरह उनको अगर खरीदने हैं, दे मे गेट सब्सिडाइज्ड गुड्स. ठीक है. इनको सब्सिडाइज्ड गुड्स गवर्नमेंट दे सकती है, और गवर्नमेंट इनको बेटे लोन्स भी ऑफर कर देती है. एंड दीज लोन्स आर ऑफर्ड एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट. गवर्नमेंट इनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी लोन ऑफर कर देती है. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज गेट गवर्नमेंट सपोर्ट? इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है क्योंकि बेटे इनका डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है. हमने यहाँ पर पढ़ा that there is equality in voting status. डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी में जितने भी लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं, गवर्न करते हैं कंट्री को. ठीक है. तो इसी तरह ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ये अपना वोट कास्ट करते हैं, और ये 3 मेंबर्स को इन्होंने इलेक्ट कर लिया. ये 3 मेंबर्स इनको रिप्रेजेंट करेंगे और इनके बिहाफ पर इनके वेलफेयर को माइंड में रखते हुए सारी डिसीजंस लेंगे. ठीक है बच्चे. सो इसका मतलब इसका जो कैरेक्टर है वो डेमोक्रेटिक है. दूसरी बात, 1 मैन 1 वोट है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट डिफरेंट मेंबर्स हैव कंट्रीब्यूटेड डिफरेंट रेशियोज ऑफ कैपिटल. किसी एक पर्सन ने 50,000 कंट्रीब्यूट किया है, किसी ने 50 लाख कंट्रीब्यूट किया है. डिस्पाइट दिस डिफरेंस बोथ हैव 1 वोट ईच. ठीक है. तो यही एक इसकी एक स्पेशलिटी है, इसका डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, जिसके करके गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है. क्लियर बेटे? Anyone having any doubt? Then last point बेटे, merit ease of formation. आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे फॉर्म होती है? अंडर which act? Cooperative Societies Act 1912. You have to follow the provisions of this act, and believe me, it's not difficult to form a cooperative society. A few legal formalities are required which can be easily fulfilled by any person. ठीक है. कोई भी पर्सन उनको easily fulfill कर सकता है. इस तरह से कोई बहुत ज्यादा मुश्किल लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है. सो देयर इज ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है बच्चे. वी हैव डिस्कस्ड द मेरिट्स. देयर आर सर्टेन डीमेरिट्स आल्सो. ठीक है. हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी हैं.
पहला डीमेरिट लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि बेटे कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन फॉर्म कर रहा है, मेंबर्स मिलके फॉर्म कर रहे हैं जो अपने आप को कुछ बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मिडलमैन, बट देयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज से ही फॉर्म हो सकती है हमारे पास, even though we can have loan from the government for the cooperative society, लेकिन जो अपने रिसोर्सेज हैं बेटे वो हमारे कम होते हैं, ठीक है। देन देयर इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, लाइक आई टोल्ड यू कि इसके जो मेंबर्स हैं वो ऑनरेरी बेसिस पर ही सर्विसेज ऑफर करते हैं, सो मेंबर्स मे नॉट बी वेल वर्स्ड इन मैनेजमेंट अफेयर्स, ठीक है। तो आजकल जो है आपको मालूम है कितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, एमबीए के कम हम अगर मैनेजर रखते हैं तो हमें लगता है कि हम वो compete नहीं कर पाएंगे हम बाकियों के साथ। इसी तरह एमबीए में भी आगे स्पेशलाइजेशन आ गई है, कोई रिटेल में स्पेशलिस्ट है, कोई मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट है, लेकिन ये मेंबर्स जो हैं ये कोई इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ना ही स्पेशलिस्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ इसकी मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती। देन देयर इज लैक ऑफ सीक्रेसी बेटे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं उसको कोई भी उनके सीक्रेट्स को रिवील कर सकता है, इनको अपने अकाउंट्स वगैरह भी पब्लिश करने पड़ते हैं, तो इसीलिए एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करनी पड़ती हैं टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसके पास इनको अपने एनुअल रिपोर्ट्स सबमिट कराने पड़ते हैं, तो इनकी जो सीक्रेसी है वो रिवील हो जाती है। देन बेटे क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, गवर्नमेंट लोन्स वगैरह देती है, सब्सिडीज देती है, तो गवर्नमेंट अपने हाथों में कंट्रोल में रखना चाहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, क्योंकि जो जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना वो फार्मर्स वगैरह बनाते हैं, तो फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट उनको कहीं कोई मेंबर फार्मर के, कई ऐसे होते बड़े फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं और वो एक्सप्लॉइट कर देते हैं बाकी मेंबर्स को, तो उसके लिए गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि मैम ये मैरिज की तरह भी हो सकता है गवर्नमेंट का कंट्रोल, लेकिन बेटे जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ना वहाँ पे एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, यू हैव टू डू एवरीथिंग taking the permission of government, so that ways it becomes demerit. Then बेटे mutual disputes में आपका there may be difference of opinion, जिस हम एंथुजियाज्म से बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो थोड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कुछ सेल्फिश लोग जो ज्वाइन कर लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो कुछ और तरह से कोई और डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन जो मेंबर्स सच में वेलफेयर मोटिव, सर्विस मोटिव के लिए जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन की है वो इनके साथ सहमति नहीं दिखाते हैं अपनी, सो इन दिस के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मे बी देयर, ठीक है। So these are the demerits of cooperative societies. Tomorrow we will discuss about the types of cooperative society. There are different types of cooperative societies which we will discuss in tomorrow's lecture, right?